Today's guest, as well as the principal and all staff members. Good evening to all. Dear children. Now, today we have a guest. Okay. The guest actually, which you are saying, will not guest, actually special leader. Now he was more student. And what we saw in that from that process there was a drastic change in 2008 by seeing some incidents of human beings. So like that there was a drastic change turning point from his life. So let us welcome him on this occasion with a big clap. Sir, name is Jagadish Suklal Krishna. He is also entitled another name Jagannath Vatra Das. He was born in 1983 and he had admission in 1993 in Navodaya School, Jawahar Navodaya School, Bhusawal, in Jalgaon district, Maharashtra. As he studied up to 10th class, there he stood first in board exam, that is 1998 batch, in JNU Bhusawal. After that, in 2000, he obtained second rank in 12th class standard, that is science field, in Nashik Division Board. After that, he has gone for higher studies and they have BTech in Mechanical Engineering from BJTI College, Mumbai in year 2004. After that, he worked as lecturer in engineering colleges in Mumbai and since 12 years old, now he is fully devoted to the ISKCON, that is Mumbai branch, International Society for Krishna Consciousness, for spreading spiritual knowledge and guiding the students of schools and colleges by telling them the importance of life and meditation all over the country. So far, he has visited 126 Navodaya schools and in 4 regions, that is states he visited that Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Kerala. So in these overall 156 schools visited and he again is going to visit in Germany and rest of the schools. Because wherever he goes actually he has put a landmark something that yes, okay, beyond life, okay, there is something in future, beyond your studies, beyond your normal life. So there is something is there, so that he wants to integrate in the innocent minds of children. Again, more than 1,000 schools and colleges he visited and he has reached or given his good lectures on life skills and life values. So let us welcome once again and I would like to call him on the stage to where he will speak on spiritual life so that our children will be inspired. Sir, please. उसको ऑन करके दो. इसको बंद करते हैं? नहीं, इसको बंद करते हैं. So I thank our dear Principal Sir, Shri P. Nagarajan, and all teachers to give me this heartfelt welcome here at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kalaburgi 1. Kalaburgi? Kalaburgi 1, Gulbarga 1. I feel so happy to see you. Good evening here. You feel so happy to see me? कि आपका छोटा परिवार है, क्योंकि मैं अभी जो स्कूल में गया हूँ सब जगह वहाँ 500 लोग होते हैं, यहाँ उसका आधा लोग है. अपन नया स्कूल है, नया स्कूल है, आपको नया बिल्डिंग मिला है, आपको अच्छा लग रहा है ना हमारे बिल्डिंग में? सब नया नया सुंदर, हाँ, नया नया जीवन आपको मिला है, नया नया जीवन मिला है आपको. यस, यू आर नाउ ना बडिंग स्टेज. आपका जो जीवन का जो है शुरुआत है, तो आपको बहुत अच्छा मौका है अच्छा बनने के लिए. नवोदय में आए हैं. नवोदय
नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हम ही नवोदय। तो सब नया नया है आपके लिए, हम भी आपके लिए नए नए हैं। और आपके लिए साधु को देखना नया नया होगा। नवोदय से पास आउट साधु कोई देखा नहीं होगा, कभी कभी देखा है आपने? आपके जीवन में पहला अनुभव होगा कि नवोदय से पास आउट कौन साधु आया है आज अपने बीच में। आपको खुशी होगी जानने में। अभी जो मैं 129 नवोदय जा चुका हूँ, आज का 129वां नवोदय है, तो मुझे पता लगा टीचर से कि मैं अकेला नहीं हूँ जो अपना जीवन जो है इस ज्ञान के प्रचार के लिए, सेवा के लिए दिया है। मुझे समझ में आया है, सुनने में आया है टीचर से कि 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा अपने नवोदय पास आउट जो आपके अन्ना हैं वो इस्कॉन संस्था में साधु बने हैं, ब्रह्मचार्य बने हैं कि वो जीवन का विज्ञान जो है, लाइफ साइंस, लाइफ स्किल्स, जो भगवत गीता साइंस है, वैदिक साइंस, इसका प्रचार करने के लिए। क्यों? नवोदय समिति का जो विचार है हम सबके लिए, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। तो ये बात नहीं है कि सेवा बस ऐसे ही करना है, लेकिन ये भी एक डिपार्टमेंट है सेवा के लिए ये बात बोलना है। सबको ऐसे बनने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे बन भी नहीं सकते सभी। जैसे सभी लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, बनने की आवश्यकता भी नहीं है। सभी लोग डॉक्टर्स नहीं बन सकते, आवश्यकता भी नहीं है। हम जो भी बने, हम सेवा की भावना बना सकते हैं कि है हम सेवक हैं। क्यों? सेवा ही हमें सुख देती है, सेवा ही हमें सुख देता है। पैसे तो कोई भी कमाता है, पैसे कमाना बड़ी चीज़ नहीं है। बिना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये कोई दुकान लगा दे कहीं भी, पानी पूरी का, भेलपुरी का, वड़ा पाव का, वो भी 1000 रुपये कम से कम कमा ही लेता है गांव में कहीं पे भी। तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। हमें अपने जीवन को सेवा में लगाना या सेवा की भावना अपनाना हमें सुख देता है। इसलिए समिति जानती है कि इन बच्चों को, जो बुद्धिमान हैं, जो होशियार है, प्रतिभाशाली है, इन बच्चों को अच्छा बनाकर और अच्छा बनाकर ज्ञान देकर इनको अच्छा महान सेवक बनाया जाए। उनके लिए लिखना आसान था। क्या? कम टू लर्न एंड गो टू अर्न। सीखने के लिए आओ और कमाने के लिए जाओ, ये लिखना आसान था, क्योंकि लर्न एंड अर्न, कम टू लर्न गो टू अर्न आसान था। लेकिन वो जानते हैं कि केवल पैसा कमाने से सुख नहीं मिलता, जीवन का समाधान नहीं होता है और समाज का कल्याण भी नहीं होता है। तो इसलिए यदि हमें नवोदय समिति का जो नवोदय जो पूरा विद्यालय है पूरे देश में, इनका जो व्यवस्था है कौन बनाता है? समाज बनाता है, देश की जो पब्लिक है वो बनाती है। हमें तो सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है मुफ्त में, लेकिन कोई दे रहा है। जो लोग हैं समाज में, देशवासी हैं, उनका जो मेहनत का पैसा है, कुछ पैसा जो टैक्स में जो मिलता है, उसका एक बड़ा हिस्सा नवोदय विद्यालय चलाने के लिए लगाया जाता है। तो हमें दिया जा रहा है समाज की ओर से। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये तो अपना मिलना ही था, ये तो अपना अधिकार था, ये नहीं समझना है। हमेशा ये याद रखना है कोई हमको दिया है। क्यों? यदि भूल जाएंगे कोई हमको दिया है, इसको हम अपना अधिकार मान लेंगे, तो हम जो व्यवस्था, जो हमें सुविधा मिला है, उसका हम सही उपयोग, सही लाभ नहीं ले पाते हैं, उसकी हम कीमत नहीं समझते हैं, हम उसको वेस्ट करते हैं। जो फ़ायदा मिला, जो फ़ायदा ले सकते थे, हम ले नहीं पाते हैं। इसलिए हमें वैल्यू जो है हमेशा होना चाहिए जो मिल रहा है। तो पानी हो, अन्न हो, पूरा जो व्यवस्था है, जो भी सुविधा है, वो सब कुछ कोई हमें दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जीवन सबसे अनमोल है। जीवन सबसे अनमोल है, वैल्यू है, वैल्यूबल। दुनिया में सबसे मूल्यवान कुछ है तो अपना जीवन ही है कि नहीं? इस जीवन का समय कोई दुनिया की संपत्ति से हम खरीद नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति आईसीयू में होता है, वो डॉक्टर को कितना भी पैसा दे दे, डॉक्टर साहब मुझे 1 महीना जीना है,
आप ये पैसा लीजिए और मुझे 1 महीना का जीवन जो है दीजिए। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है, मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अभी आपका समय ज़्यादा नहीं है, आपका समय अभी थोड़ा बाकी है। अपने जीवन का समय बड़ा मूल्यवान है। मुझे नवोदय विद्यालय छोड़ के 27 साल हो गए। आपको लगता होगा नहीं सर बहुत समय है अपने पास, बहुत समय है। मुझे 27 साल छोड़ के हो गए नवोदय विद्यालय। तो समय जाने में समय लगता नहीं, समय ऐसा उड़ जाता है। कभी कभी हम जो बड़े लोग होते हैं समझते हैं हम कभी छोटे थे, किसी का हाथ पकड़ के, आज कोई अपना हाथ पकड़ का है ना। जो पोता होता है, पोता ग्रैंडसन, पोता से हम दादा कैसे बन गए समझ में नहीं आया, इतना समय कैसे चला गया। तो जीवन की जो गाड़ी है सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जीवन की गाड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। बचपन से बुढ़ापा कब आ जाएगा समझ में नहीं आता है। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं इफ यू वेस्ट टाइम यू वेस्ट योर लाइफ। वाई? लाइफ इज फॉर सम टाइम। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज अवर लाइफ। ऐसा बोलते हैं कि समय मूल्यवान है, बोलेंगे कि टाइम इज मनी। लेकिन थोड़ा सोचेंगे हमें समझ में आता है टाइम इज नॉट मनी, बिकॉज मनी कैनॉट बाय टाइम। विथ ऑल द वेल्थ यू कैनॉट बाय ऑल्सो अ सिंगल डे। एक दिन का समय भी हम अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकते दुनिया की संपत्ति से, जब अपना समय हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा सावधान होना चाहिए कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। और नवोदय विद्यालय समिति का जो लोगो है, आपने लोगो देखा है नवोदय समिति का लोगो? हाँ, सब जगह होता है। आपके टाई पे भी होता है, बेल्ट पे होता है ना, सब जगह होता है, किताबों नोट्स बुक्स पे होता है। तो फिर मुझे बताइएगा उसका मतलब क्या है। उसमें 2 शब्द है, नीचे 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। कभी सोचा इसके विषय में कि इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? दीदियों में आप लोग तंगी बोलते हैं ना, छोटा बहन को तंगी बोलते हैं और इनको तमा बोलते हैं कोई जो तमा है यहाँ पे, कोई बताएगा कि हम आपका अन्ना है अपना बड़ा भाई है। तो कोई बताएगा कि ये प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? कभी सोचा है? सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि जो मुख्य बात है यदि हम वहाँ सोचेंगे नहीं, बाकी कहाँ सोचेंगे? ये सर उस सिलेबस में नहीं सर उसका एग्ज़ाम नहीं होता है सर, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्यों पढ़ना है सर, क्यों सोचना है सर, उसका मार्क्स तो मिलने वाला नहीं सर ऐसा नहीं बच्चों। आप हिंदी समझते हैं? छोटा बच्चा समझते हैं हिंदी? इंग्लिश गाना मत गाओ कि आप बुद्धिमान नहीं हो, पता है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए। मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, हाँ, कन्नड़ा में बोल नहीं सकता। यदि मुझे आता तो मैं बोलता लेकिन मुझे आता नहीं है। यहाँ का जो 9th क्लास है, माइग्रेशन है सर, माइग्रेशन कहाँ का है? जिला जिला ओके समझ, मुंगेरी, ओके, छत्तीसगढ़, जहाँ छत्तीसगढ़ होते हैं तो ओके। तो हमें कोई बताएगा? नहीं पता, ओके। तो हमें ये आदत पहले से थी, बचपन से, अभी भी है। तो कुछ पढ़ता हूँ, कुछ लिखा होता है कोट्स, मैथ्स में होगा, मैथ्स में लिखा होता है कोट्स होंगे, सुविचार, गुड थॉट्स, कोट्स। क्या लाइब्रेरी में होता है? लाइब्रेरी या स्कूल बिल्डिंग में बहुत जगह होता है, हाँ सब जगह है। तो मुझे एक आदत, अच्छी आदत है बचपन से। क्या आदत? कि कोट्स पढ़ना चाहिए। क्यों? एक एक वो विचार में, सुविचार में बड़ा ज्ञान होता है, जीवन की दिशा मिल सकती है, हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल सकता है, हमें अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, मिलती है। जैसे बोलते हैं जीवन समय मूल्यवान है लेकिन जीवन अमूल्य है, ऐसा बोलते हैं।
समय का कुछ मूल्य हो सकता है, भाई 1 घंटा काम किया आपको मैं 500 रुपये दूंगा, ऐसा कुछ कभी होता है। समय मूल्यवान है, लेकिन जीवन अमूल्य है। जीवन का हिसाब बेच नहीं सकते, 2 लाख रुपए देके जीवन ले लो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लोग समय का पैसा दे देते हैं, 2 घंटा काम किया 500 रुपये ले लो, समय मूल्यवान है। लेकिन जीवन क्या है? अमूल्य है। जीवन का कोई कीमत पैसे में नहीं हो सकती। ओके, तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है, तो कोर्स पढ़ने चाहिए और उसका मतलब क्या है सोचना चाहिए। थर्ड चीज, मतलब समझने के बाद उसका पालन करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुना है कभी? इंग्लिश सेइंग इज है कि जल्दी सोना जल्दी उठना हमें क्या देता है? स्वास्थ्य देता है, हेल्थ, धन देता है। कौन सा धन देता है? समाधान का धन, खुशी का धन देता है। जल्दी उठने से अच्छी प्रसन्नता आती है, जीवन में खुशी आती है, उत्साह आता है, और स्वास्थ्य अपना बुद्धि भी जगता है, बुद्धि का विकास होता है। जो लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, उनकी बुद्धि मंद होती है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? कभी सूर्योदय देखेंगे नहीं, तो जो एक अच्छा प्रकाश जीवन का, ज्ञान का प्रकाश हमें कहाँ मिलेगा? आप लोग कितने बजे उठते सुबह? 9 में उठते ना सर? ऑप्शन नहीं सर, उठना पड़ता है सर। उठते आप लोग ना? अच्छी आदत है नहीं? अच्छी आदत है ना? सुबह दौड़ लगाना, अच्छा एक्सरसाइज होना। ओके, तो वही बच्चे आप जब वेकेशन में जाते हैं, आप लोग जाते हैं वेकेशन में, आपको पता है कितने बजे उठते हैं? उठते कि नहीं सर, सोते हैं तो उठते ही नहीं, ऐसी कोई बात है? उठते हैं। कब उठते हैं? तो हमें कंपटीशन नहीं करना है कौन कितना लेट उठता है, हमें बुद्धि से समझना चाहिए। ये जो अच्छी आदत है जल्दी उठने की, हमें जीवन में हमेशा के लिए पालन करना चाहिए। ये बात नहीं स्कूल में है तो सब उठते हैं, गांव में जाकर नहीं उठते सब, नहीं। ध्यान दीजिए, हम क्या किए, अपना सेशन जो है ना, कोई प्रेयर नहीं बोले हैं, तो मैं चाहूँगा 2-3 मिनट जो है हम प्रेयर छोटा सा बोलेंगे, ताकि आपका मन जो है ना और थोड़ा शांत हो जाए। थोड़ा सीधा बैठो सब लोग, सीधा बैठो। हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे सुनते हैं, ये सब लाइफ स्किल्स है। लिसनिंग स्किल्स और बिहेवियर सब स्किल्स होता है। फंक्शन में कैसे हम बैठते हैं, लोग हमें देखते हैं तो अपनी वैल्यू उससे होती है। केवल कागज में कितने अंक आए हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, उससे नहीं होता है। जीवन में, समाज में अपनी वैल्यू, कीमत किससे होगी? अपना व्यवहार, बिहेवियर, how we function, how we speak, how we conduct, that makes a value. Okay. तो हम अपना हाथ जोड़ेंगे छाती से, आंखें बंद कीजिए। थोड़ा सा हम अपने मन के लिए प्रेयर बोलते हैं। साइलेंस प्लीज। मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलो।
ओम असतो मा सद्गमये ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One last time. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। Slowly you open it up. You can open your eyes now. कुछ अच्छा लगा आपको? थोड़ा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा एक नया उजाला न्यू लाइट आता है यदि हम थोड़ा भगवान से जुड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान क्यों हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। गाते आप लोग कभी? गाते होंगे, सुना होगा कभी। तो यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान में श्रद्धा दिखाते हैं, तो हमें शक्ति मिलती है। केवल बोलने से नहीं होगा। हाँ हो गया, बोल के हो गया। ध्यान दीजिए, यस प्लीज अटेंशन। अपने मन को शांत रखिए।
यस प्लीज, यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखिए, मैं आपके लिए आया हूँ। हम आपको अपना मानते हैं कि अपना तमा पतंगी, हाँ, इनका जीवन सुखी हो, इनका जीवन महान बने, सफल हो, ऐसा हम सोचते हैं। क्यों? हमने प्रतिज्ञा लिया बचपन से कि भारत किसका देश है? हमारा है, मेरा देश है, इंडिया इज माय कंट्री बोलते हैं। और फिर सब भारतवासी कौन है? भाई बहन है। हमने बोला है, वचन लिया है, प्रतिज्ञा ली है, हम उसको मानते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करते हैं कि अपनों के लिए सेवा देंगे, अपनों के लिए। ये जो भाव है, अपनापन का भाव, हमें प्रेरणा देता है। अपनापन, अपने हैं, अपना फैमिली है, नवोदय का अपना हाउस है, नीलगिरी, उदयगिरी, शिवालिक, हाँ अराली भी अपना हाउस है। तो ये जो स्पिरिट है, अपना है, अपना देश है, अपना फैमिली है, अपना गांव, अपनापन हमको शक्ति देता है। यस प्लीज, ध्यान दीजिए। तो मैं आपके लिए आया हूँ, तो आप थोड़ा सुनिए। लाभ किसका होगा? आपका ही होगा, क्योंकि जिससे हमने अपना जीवन का समाधान पाया है, हमें जीवन का सुख मिला है, वो हम बांटना चाहते हैं। ये बात नहीं है कि फिजिक्स सिखाने से ही अपना जीवन सुखी होगा। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वो अपना क्या है? ड्यूटी है, ये अपना एक आवश्यकता है, कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है। लेकिन ये नहीं है कि बस उससे ही सुख मिल जाएगा। केवल सुख उससे नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा यदि हम स्वयं को जानेंगे। स्वयं को मैं जो बताया, प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, जो कुछ पॉइंट्स बोला हूँ मैं लेने वाला हूँ। तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो शब्द है, उसका मतलब है कि दो शब्द है, ज्ञान और ब्रह्म, और एक जोड़ दिया है प्र, जैसे सिद्धि प्रसिद्धि, प्र जोड़ देते हैं, प्रीफिक्स। तो विशेष, स्पेशल, द बेस्ट वन, हाईएस्ट। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। तो प्रज्ञानम क्या हो गया? प्रज्ञानम। एक शब्द प्रज्ञा भी है, प्रज्ञा बुद्धि, वो अलग है। ये जो दो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, उसका मतलब ये बताया जाता है कि ज्ञान जो विशेष है, सबसे महान है, वो ब्रह्म ज्ञान है। जैसे कभी आपने वेद वाक्य सुना होगा कि अपनी पहचान है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं। ये तो मॉडर्न साइंस तो नहीं बताता है। जो मॉडर्न साइंस जो किताबें हैं, जो ब्रिटिश लोग हमको दिए हैं 200 साल से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो कुछ है, अपने देश में ये सिलेबस नहीं था। पहले 200 साल पहले सिलेबस नहीं था। अपने देश में वैदिक साइंस सिखाते थे, वैदिक साइंस। और वैदिक साइंस कब का है? जब दुनिया बनी तब का है, करोड़ों साल पहले। और वैदिक साइंस का ज्ञान, वेदों को ज्ञान, वेद का ज्ञान किसको दिया गया पहले? जो पहले जीव थे। पहला जीव अमीबा नहीं था, पहला जीव ब्रह्मदेव थे। ब्रह्मदेव जिनका जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि कमल से, ब्रह्मांड में। शब्दों पे ध्यान दीजिए, यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड, जिसमें आधा पानी होता है, लिक्विड पानी, जिसमें भगवान विष्णु नारायण, जो उनका बेड होता है अनंत शेष नाग का, उस पर लेटते हैं। उनकी जब इच्छा होती है सृष्टि बनाना है, तो उनके नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मा जी को प्रश्न पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। वो तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और फिर वेदों का ज्ञान देते हैं। तो वही वेद माता सरस्वती के हाथों में हम पाते हैं। आप देखिए, ये केवल कल्पना नहीं है, वो पता नहीं ऐसी कल्पना है, मैथोलॉजी बुक्स है। जैसे ब्रिटिश लोग बोल दिया, ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम करने के लिए जो षड्यंत्र किया था, उसका एक भाग था कि इनका जो विज्ञान है, इनका जो इतिहास है, इसको हटा दो समाज से, इनको वंचित कर दो। आज वही हुआ है कि हम देश के तो हैं, भारत के, लेकिन अपने देश का जो इतिहास है, महान इतिहास,
अपने देश की जो संस्कृति है, अपने देश का जो विज्ञान था करोड़ों साल से, हम उससे वंचित हो गए हैं और सोचते हैं केवल ये केमिकल मॉलिक्यूल जो कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये एडवांस साइंस है। वेदों में सभी ज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, आर्किटेक्चर भी है, मेडिकल साइंस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ है, और लाइफ साइंस भी है, जिसे बोलते हैं अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, सब कुछ है। तो उसमें वेदों में वाक्य आता है अपनी पहचान के विषय में कि हम कौन हैं। मॉडर्न साइंस में क्या बताया जाता है? कल्पना बताई जाती है, डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का कल्पना बताया जाता है कि ये जीव, जो हम सभी जीव है, सजीव है, लिविंग बीइंग है, ये कैसे बने? तो बोलते हैं कि केमिकल्स मिक्स हो गए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए होंगे कुछ लाखों साल पहले, मे बी, और पहला जीव अमीबा बन गया होगा, सिंगल सेल का। ऐसा कल्पना हमने पढ़ा है सिलेबस में, उसको हम सत्य मानते हैं, जो कल्पना है। और उस सिंगल सेल का अमीबा से इवोल्यूशन होते होते 2 सेल के बन गए होंगे, फिर से मल्टी सेल के बन गए होंगे, और फिर एक्वेटिक्स बने होंगे, ऐसा लिखा गया। वो थीसिस का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसको हम पढ़े हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उसमें डार्विन ने स्पष्ट लिखा था, दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन। क्या लिखा है? दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन, क्योंकि वो समय तो वो थे नहीं लिखने के लिए, कैसे बना बोलिए। तो उन्होंने कल्पना बनाई अपने अपने थोड़ा सा दिमाग से कि मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। और फिर मनुष्य कैसे बने, तो वो भी कल्पना जोड़ दिया उसमें कि बंदर जो है उसकी पूंछ छोटी होती गई होगी, और जो हम आज मंकी बोन बोलते हैं, तो मंकी बोन उसने बोल दिया कि जो लास्ट वर्टेब्रा कॉलम होता है अपना बैकबोन में, उसको मंकी बोन बोल दिया कि वो मंकी जो था बंदर, उसकी पूंछ छोटी होती होते निकल गई और हम वो मनुष्य बन गए। जबकि अपने वैदिक साइंस में दुनिया कब बनी, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, जीवों की संख्या कितनी है, पानी में कितने जीव होते हैं, हवा में कितने जीव होते हैं, जमीन के कितने जीव होते हैं, और जीवन केवल पृथ्वी पे नहीं, जीवन इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी स्टार्स है, सब जगह जीवन है, सब जगह जीवन है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट लोग जो है ढूंढने में लगे हैं, वहाँ पानी है क्या, वहाँ पे जीवन है क्या, ढूंढने में लगे हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन अपने वैदिक साइंस में भगवान जो दुनिया बनाए हैं उन्होंने सब ज्ञान दे दिया है, क्योंकि ये दुनिया का ज्ञान जो है दुनिया बनाने वाला ही दे सकता है। हमें तो इतना भी ज्ञान नहीं कि हम जो जन्म लेके आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम दुनिया में जन्म जीते तो हैं, लेकिन हम कितना समय जीते हैं, जिएंगे वो भी पता नहीं, हम इस शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे हमें वो भी पता नहीं। सिंपल बात मुझे बोली है, यदि केमिकल से जीवन आया होता, केमिकल से भावना नहीं होती है, केमिकल से भावना नहीं होती है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड मिक्स होने से यदि जीवन उत्पन्न हुआ होता तो आज के लैबोरेटरीज में कुछ तो ऐसा बनाया होता जीव, बिना जीवन मतलब बिना कोई यहाँ का कोई वस्तु लेके केमिकल मिक्स करने से कोई सेल बनाया दिया होता। किसी का हेल्दी बॉडी समझो, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, तो कुछ केमिकल डालने से मृत्यु हो गई, तो कुछ केमिकल उसमें डालने से वापस जीवन आना चाहिए। लेकिन हम कॉमन सेंस से समझते हैं कि जीवन केमिकल से नहीं आता है, जीवन का स्रोत जीवन ही होता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, डेड मैटर से जीवन नहीं आता है। जीवन जो है, जैसे हम हैं, तो हम अपना ये हुआ है कि हमने कभी वेद का कभी ज्ञान लिया नहीं है, जो वैदिक साइंस दुनिया में पहले से था, और कभी हमने सुना नहीं है, तो लगता है और जो ब्रिटिश लोग बोल दिए थे। ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि हम समझेंगे अपना जीवन का संबंध इसके साथ, अपना जो मन भटकता है,
अपना मन भटकने वाले मन के लिए केमिकल का कोई ऐसा टैबलेट नहीं है जो खाने से आपका मन शांत हो जाए। हमें जो भी इतनी इच्छाएं होती है, कुछ पाना है, कुछ करना है, मन इतना दुखी हो जाता है, कुछ केमिकल खाने से आपका मन सुखी नहीं होगा। समझने की बात है कि जो मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है, केमिकल से जीवन आया है, कितना घातक है। सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है उसका। जो जीवन की समस्याएं हैं, हम में जो इतना गुस्सा आता है, कभी इतना दुख होता है, हमें इतना कभी चिंता होती है, हमें इतना कभी भय लगता है जीवन में, इसका उपाय केमिकल से तो नहीं होगा। हमें समझना चाहिए अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार और हम जो स्वयं, इसका विकास कैसे हो, केमिकल तो से नहीं होगा। तो ये जो डार्विन का कंसेप्ट था कि ऐसा हुआ होगा जीवन की उत्पत्ति, ये बड़ा समाज में नुकसान किया है कि जो भगवान में श्रद्धा थे लोगों की, वो टूट गई। कि इसमें ऐसा दिखता है कि आत्मा नहीं है और भगवान भी नहीं है, और दुनिया कैसे बनी, तो इसके विषय में बिग बैंग थ्योरी हमको ऐसा मॉडर्न साइंस में कल्पना को दी गई है। देखो, हमें इतना समझना चाहिए कि आज जो मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं वो मनुष्यों द्वारा दिया गया है। इसका बेसिस है ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। और हम इतना समझते हैं कि अपने सेंसेस में लिमिट है, अपनी बुद्धि को एक लिमिट है। हम अपने ऑब्जर्वेशन से सब कुछ देख नहीं सकते, सब कुछ समझ नहीं सकते। इसलिए अपने जो थ्योरी होती है, अपने जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो अपना फाइंडिंग होती है, सर्च, वो बहुत समय फॉल्टी होता है, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। इसलिए वो बदलते रहता है हमेशा। रिसर्च, क्योंकि अपना सर्च कभी परफेक्ट नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है, इसलिए हमें बार बार सर्च करना पड़ता है। तो शब्द क्या दिया है? रिसर्च, संशोधन, बार बार खोजना पड़ता है। लेकिन वैदिक साइंस जो है, वैदिक साइंस जो भगवान दिए, मुझे बोलिए दुनिया बनाने वाला कोई होगा, ये लॉजिकल है, सेंसिबल है, या कोई नहीं बनाया होगा, अपने आप बन गया होगा, ये लॉजिकल है। जैसे भी पेंटिंग बनती है, आप लोग पेंटिंग बनाते हैं, स्केचेस, तो स्केचेस जो है, पेंटिंग जो होती है, वे भी लगाते हैं नोटिस बोर्ड पे। ये पेंटिंग कोई बनाया होगा, ये लॉजिकल है, कोई बनाया है, लॉजिकल है, ये नहीं सर। पेंटिंग जो है ना, होली की जब हम कलर जो होते हैं, होली के कलर, रंग उड़ाते हैं, तो फ्लाइंग कलर्स जो होते हैं, उड़ने वाले कलर्स, उससे पेंटिंग बन जाता है सर, अपने आप। ये लॉजिकल है कि बाय चांस किसी के बिना पेंटिंग बन गया, या कोई पेंटिंग सोच समझ के बनाया है, क्या लॉजिकल होता है? कोई तो बनाया होगा, कोई तो बनाया होगा। तो बच्चों, हमें इतना समझना चाहिए बुद्धि से कि दुनिया में जो कुछ भी है, कोई तो बनाया है, कोई तो इसका मालिक है। जैसे प्रत्येक वस्तु का एक मालिक होता है, तो दुनिया का कोई मालिक है। जैसे स्कूल का भी कोई कंट्रोलर होता है, स्कूल का भी कोई कंट्रोलर स्कूल का होता है, हाउस का होता है, अपने जीवन का, अपने बॉडी का भी कोई कंट्रोलर हम होते हैं। ध्यान दीजिए, यस प्लीज। तो दुनिया का भी कोई कंट्रोलर है। तो मुझे ये बोलना था कि वेद जो है, ये ज्ञान है, और जो शब्द लिए गए हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब है कि सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म है हम जीव, ब्रह्म है हम जीव, आत्मा, जिसके वजह से जीवन है। ये जो इसको कोडियम बोलते हैं, कोडियम, इसमें जीव है, इसमें जीव नहीं है, डेड बॉडी है। बॉडी तो है, एक बॉडी है, इसका एक शेप है, इसका साइज है, लेकिन इसमें जीव नहीं। तो क्या बोलते हैं? निर्जीव। हम सबकी जो बॉडी है, हम सबकी बॉडी जो है, तो उसमें जीव है, सजीव बोलते हैं। तो जीवन का आधार
जीव होता है। जहाँ जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं। जैसे डेड बॉडी में सब पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, हाथ है, दिमाग है, पाँव, सब कुछ है, आँखें भी होती है, सब कुछ होता है डेड बॉडी में। लेकिन वहाँ पे जीव नहीं जब होता है तो डेड बॉडी का कोई उपयोग होता है? कोई संभालता है डेड बॉडी को? नहीं सर, केमिकल कम हो गए हैं, केमिकल डालने से वापस जीवन आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है? जीव नहीं तो जीवन नहीं, सिंपल बात। और हम सब बोलते तो हैं कॉमन सेंस, हमको छोड़ के गए सर, हमको छोड़ के चले गए सर। कौन गया? बॉडी है तो उसको उठाओ, नहीं सर ये तो डेड बॉडी है, तो कौन चला गया? मेरा दादा चला गया। कॉमन सेंस की बात है। जो जीव था, व्यक्ति जिसकी वजह से जीवन था बॉडी में, वो चला गया। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब होता है सबसे महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। और जो वेदों में बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, वेद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि की पहचान भगवान बताया है। क्योंकि हमें तो ज्ञान नहीं है, हम सोचते हैं ये बॉडी जो है ये मैं हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ? जो आईने में दिखता है, बॉडी, नाक, मैं ऐसा हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं। हम नहीं देखते हैं, मतलब आईने में जो दिखता है वो हम नहीं हैं, अपनी बॉडी है। कोई से बोलता है आई एम द बॉडी सर, आई एम फैट बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी। हम क्या बोलते हैं? माई बॉडी, मतलब हम बॉडी नहीं होते हैं। बोलते हैं माई व्हीकल, माई हाउस। आप कभी ऐसे बोलते हैं आई एम द हाउस, आई एम शिवालिक हाउस एंड नीलकंठ हाउस। कोई ऐसे बोलता है नहीं, हम बोलते हैं आई एम फ्रॉम, मैं वहाँ से हूँ, मैं उसका हूँ, मैं हाउस नहीं हूँ। आई एम इन द हाउस। वैसी बॉडी जो है, बच्चों ये बोलने का उद्देश्य है हमें ये ज्ञान होगा तो हमें अपने मन के लिए, अपने बुद्धि के लिए बड़ा लाभ होता है। मन शांत होता है, जो मन यहाँ वहाँ भटकता है। क्यों? मन को चाहिए सुख। मन को क्या चाहिए? यस, मन क्यों भटकता है? मन भटकता है सुख के लिए, आनंद के लिए। लेकिन जब उसे कहीं मिलता नहीं, वो भटकता रहता है। कभी कभी मिलता है लेकिन वो सुख टिकता नहीं, वो कुछ निकल जाता है, इसलिए मन भटकता है। बच्चों, यदि हम जानें अपनी पहचान ये जीव की है, जो है तो जीवन है। देखो अपना बॉडी जो है, अपना बॉडी हमेशा बदलता रहता है समय के साथ। आप लोग कभी LKG में थे, UKG में थे? छोटे बच्चे? यस, टॉयज़ के साथ खेलना ये सब आपने किया है ना? अभी आपका बॉडी बड़ा हो गया है। आप सबने जन्म लिया है? आप सबने जन्म लिया था या नहीं? कोई डाउट है? उसकी फ़ोटो है, वो फ़ोटो देखिए, उसका साइज़ कितना था, आज की साइज़ तो बदल गई है। आपका अम्मा जो है ये नहीं बोलेगा कि सर जो बच्चा जन्म लिया था वो अलग था और जो बच्चा नवोदय में पढ़ता है वो अलग है, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि अपने संबंध जो है, अपनी पहचान ये बॉडी से नहीं है, जो केमिकल से बनी समझो, है ना? जो तत्व है, अर्थ, वाटर, फायर, पंच तत्व, 5 तत्व थे, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे अपना बॉडी बनता है। अपनी पहचान बॉडी से नहीं है, अपनी पहचान हमसे है, जो जीव है। जीव कभी बदलता नहीं है, जीव कभी बूढ़ा नहीं बनता है, बॉडी बूढ़ा बनती है। हम बोलते भी हैं सर आई एम 14 years ओल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं ना, बोल्ड बोलते हैं, आई एम सर 12 years ओल्ड सर, ऐसे बोलते हैं ना, यंग बोलते हैं। बॉडी बिकम्स ओल्ड ऑल टाइम। समय के साथ बॉडी क्या बनता है? बूढ़ा बनता है। लेकिन हम जो जीव है, आत्मा, हम कभी बूढ़े नहीं बनते। ओके, बोलने का मतलब ये है, जो वेद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, कि हम सबका जो पहचान है वो क्या है? ब्रह्म है, जो भगवान का अंश है। भगवान का एक नाम है परमात्मा। क्या बोलते हैं? परमात्मा। तो हमें बोलते हैं आत्मा। भगवान का एक नाम है परब्रह्म। क्या बोलते हैं? परब्रह्म।
तो अपना एक नाम है ब्रह्म। भ्रम नहीं भ्रम अलग होता है, माया, भ्रम, इल्यूजन। हम कौन है? ब्रह्म, जो भगवान का अंश है। तभी तो हम गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारा। कभी गाना गाते हैं आप लोग? सुना है आपने? तो ये भी गाते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान। गाते हैं ना? तो धरती को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं। अंतिम 5 मिनट है, मुझे समय का ध्यान है। अंतिम 5 मिनट ध्यान दीजिए। आपका मेस का टाइम हो गया? टाइम है ना अभी? थोड़ा सुनना है आपको या बोर हो गए? ओके, तो 5 मिनट सुनिए। तो धरती को माता बोलते हैं। माता कभी अकेला नहीं होता है, पिता भी चाहिए। तो पिता कौन हो सकते हैं? पिता भगवान होते हैं। जैसे तिरुपति में बालाजी मंदिर है, आप गए होंगे कभी? हाँ, तो वहाँ भगवान जो वेंकटेश्वर स्वामी हैं, उनके साथ 2 देवियाँ होती है। एक बाजू में श्रीदेवी है, एक बाजू में भूदेवी है। हाँ, श्रीदेवी हम समझते हैं महालक्ष्मी माता, और जो भूदेवी है भूमि देवी है। तो जो सभी जीवों का माता है, सभी जीवों का जीवन भूमि से पोषण होता है, भूमि से पोषण होता है। हम समझना चाहिए, कोई व्यक्ति पैसे नहीं खा सकता, हमें भोजन ही लगता है, अन्न ही लगता है। तो अन्न जो है कोई कंपनी बना नहीं सकती है केमिकल डाल के। अन्न भगवान ही बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं अन्न ये पूर्ण ब्रह्म। अन्न को बोलते हैं अन्न पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं। भगवान के समान माना जाता है अन्न को। क्यों? अन्न से अपना जीवन बनता है। अन्न, जल, प्रकाश, सूर्य प्रकाश, वायु। यदि वायु ना मिले हमको, ऑक्सीजन, कोई कंपनी ऑक्सीजन नहीं बनाती है। वो लोग केवल पैकिंग करते हैं, किसमें? ऑक्सीजन प्लांट में पैकिंग, उसको पैक करते हैं, उसको सेल करते हैं। लेकिन पानी, हवा, वायु भगवान बनाए हैं। हमें समझना चाहिए कि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। हम सबका कोई माता पिता भगवान है। बच्चों, इसका संबंध ये है, जब हम अपने जीवन का जो मुख्य ज्ञान है जब लेते हैं, तो हमें अपनी बुद्धि को जगाना आसान होता है। हमें अपना बुद्धि को जगाना आसान होता है। स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे कि राइज, उठो, वेक अप, जागो, एंड स्टॉप नॉट टिल दी गोल इज रिच। वो गोल जो है हमें पता होना चाहिए, वो गोल क्या है। वो गोल है, हो गया 2 मिनट। वो गोल है स्वयं को जानना, स्वयं को जानना कि हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं। एक दिन जाना भी पड़ता है, कहाँ जाना चाहिए। तो भगवान बताते हैं गीता में, हम सभी भगवान के धाम से आए हैं। उसे बोलते हैं वैकुंठ। क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? हाँ, कंफर्म? या पहले से हैं स्कूल में? आपको याद है कहाँ से आए या भूल गए? हाँ, आपका अम्मा पापा याद है सब? अच्छी बात है। और आप उनको मिलना चाहेंगे? यस सर, हम तो मिलना क्या, हम अपने गांव जाना चाहते हैं जहाँ से आए हैं वेकेशन में। यस बच्चों, वैसे ही अंतिम बात है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जीवन का भी वैसे ही है। जीवन का भी, हम दुनिया में पहले से नहीं हैं, हम दुनिया में आए हैं जन्म लेकर, लेकिन हमें याद नहीं हम कहाँ से आए हैं। इसलिए हमें जाने का भय है। मृत्यु का भय होता है।
हमें जाने का इच्छा नहीं होता है। हम सोचते हैं सर दुनिया में सेटल होना है। जैसे कोई व्यक्ति सोचेगा, बच्चा जो भूल गया माता पिता को, अपने गांव को जहाँ से आया है, सोचेगा सर यहाँ पे अच्छे कैंपस है, मेस के बाजू में मैं अपना एक घर बनाऊंगा, नवोदय में सेटल हो जाऊंगा। तो एक बच्चा जो 12 के बाद यहाँ से जाएगा नहीं, सोचेगा मैं नवोदय कैंपस में मेस के बाजू में क्या है, एक घर बना के सेटल हो जाऊंगा। वो चलेगा नहीं। क्या बोलते हैं, कम टू लर्न एंड देन गो टू, आए हैं तो जाओ भी, यहाँ हमेशा मत रहो, ऐसा है। वैसे ही दुनिया का भी है कि बच्चों, यदि हम जानेंगे कि हम भगवान के धाम से आए हैं, तो जब समय आए, क्यों आए हैं, कोई इच्छा है अपनी, कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ तो ना करना है। तो जब समय, लास्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिए बस, मुझे समय का ध्यान है कि जब जाने का समय आएगा, अभी नहीं जाना है किसी को। जैसे आपका वैकेशन का समय आता है तो आप जाते हैं, वैसे ही जीवन का भी जो है अपना समय आएगा जाने का। तुम्हें पता तो चाहिए कहाँ जाना है। और बच्चों, अनुभव, ये विश्वास कीजिए, हम यदि थोड़ा ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे जानने की, सोचेंगे, तो इसका अनुभव आता है। इसका अनुभव आता है कि हम सभी भगवान के धाम से आए हैं। और फिर जब अनुभव आता है तो हमें मृत्यु का भय नहीं होता है। और जो हम गाते हैं ना कभी, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा, आप गाते कभी बोलते हैं, हमने अभी बोला है। तो इसका मतलब है, ये भी वेद वाक्य है, ये भी वेद वाक्य है। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना, गमय का मतलब है जाओ। तो कहाँ जाओ, हम जहाँ से आए हैं। ये लॉजिकल है, ये चीज़ें जो है लॉजिकल है कि भैया जहाँ से आए वहाँ जाएंगे तो वहाँ अपना सुख होगा, वहाँ अपना फैमिली परमानेंट होगा। बच्चों, दुनिया सब कुछ टेम्पररी है कि नहीं। दुनिया बनती है, बड़ा समय रहती है, बाद में नाश होता है। बॉडी भी जो है जन्म लेता है, बूढ़ा बनता है, बाद में एक दिन ख़त्म होता है। लेकिन हम चाहते हैं हमेशा जिए, तो हमें वेद बताते हैं असतो मां सद्गमय। दुनिया जो नाशवान है, टेम्पररी है, यहाँ से निकलकर वो धाम भगवान का जो क्या है, परमानेंट। ये दुनिया जो अज्ञान का अंधकारमय है, यहाँ से निकलकर वो धाम जहाँ ज्ञान की रोशनी है। ये दुनिया जो मृत्युलोक है, यहाँ से निकलकर भगवान के धाम जो अविनाशी है ना, अविनाशी है, जो परमानेंट है। यदि हम इतना समझेंगे, हमें चिंता नहीं होगी। अपना जीवन परमानेंट है। आत्मा का स्वभाव बोलते हैं सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं, सच्चित आनंद। हम परमानेंट है आत्मा, हम ज्ञानमय है, आनंदमय है। हमें आनंद के लिए कि बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, पूरा दुनिया अपना है, क्योंकि भगवान अपने हैं। इस थोड़े ज्ञान से हमें चिंता नहीं होती है, भय नहीं होता है, दुख नहीं होता है, अपना जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका स्कूल में मैं कल तक हूँ, किसी के मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना होगा, कल तक मुझे मिल सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, थैंक यू ऑल। Thank you, sir, for your inspiring lecture. Actually, I won't say lecture, it is enlightening. Okay, enlightened to you. Okay, was it nice? Some 4-5 fellows went to Workman and came back. Surya, okay, Akash, Ishida, and then I gone. Okay, so no problem. Sir, what you said, so definitely our children will follow you. And I am very, very thankful to you, sir, because you have told what is the real, what is the source of life. Actually, our children were not coming as science is advanced. As science is advanced, we are still thinking that it has need of chemicals. But chemicals are only the substance of it. So it will not bring life back. What brings actually life back? If you live a real life as human, as well as what sir said that, okay, life skills, value skills, these are very important. Apart from your reading material, study material, textbooks. So there is one more definition of life is that, okay, try to learn what is life, real life. Okay, so don't become bookworm and read the spiritual books. Definitely it will calm, okay, your mind
and that is a real life. It is called Sanatana. Okay, what's going on in Mahakumbh Mela? More than 60 crore people they had to bath. 3-4 days after they are having bath. Why? Spiritual life is most important than the life which you are living there. Okay, so that spiritual life must be educated. And from our side, okay, so we give assurance to the sir that yes, pregnant woman is most important. Okay, you have come here to learn and then you will go to sir, okay, not to art. So it is, I thank our today's Jagdish sir, and as he said that he is available tomorrow. So those who have doubts, okay, you can go and ask. He is available in this house. Okay, again he will come to the mess also. Those who are having some doubts which are unclear doubts. Okay, why? Tell me why. Okay, is that book you read it? Okay, there some doubts are there regarding your mind, calmness, tranquility, so that you can ask. Okay, thank you for listening very patiently. And first time I am saying that you are listening very patiently because that is your skill, a listening skill. Thank God. Now all the questions are